ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تامروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ناظرین، دنیا کی صبح اول سے ایک جنگ جاری ہے، روشنی اور تاریکی کی جنگ، حق اور باطل کی جنگ۔ وہ جنگ جو جنت کے باغات سے شروع ہوئی اور آج انسانی تہذیب کی رگوں میں زہر کی طرح دوڑ رہی ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایک کہانی ہے، فتنے کی، سازش کی اور اس انجام کی جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ناظرین، بابل یعنی آج کا عراق، جہاں زمین کے سینے پر جادو کا پہلا بیج بویا گیا، یہاں ہاروت اور ماروت کا قصہ تاریخ کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ ایسا علم جو بظاہر طاقت دیتا تھا مگر حقیقت میں انسان کو شیطان کا غلام بنا دیتا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب دنیا میں پہلی بار خفیہ گروہ وجود میں آئے، وہ گروہ جو اپنے علوم کو عام نہیں کرتے تھے بلکہ نسل در نسل پوشیدہ رکھتے تھے۔ ان کا مقصد طاقت، اقتدار اور انسانوں پر کنٹرول۔ ناظرین، جب دریائے نیل کی لہریں وقت کا گیت گاتی تھیں تب مصر کے فرعون اپنے جادوگروں پر ناز کرتے تھے۔ یہ جادوگر نہ صرف تعویذات اور منتر پڑھتے تھے بلکہ فلکیات، تعبیرات اور انسانی نفسیات پر بھی مہارت رکھتے تھے اور شیطانی علم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہاں سے ایک اور خفیہ راستہ کھلا، علم کی طاقت کو استعمال کرنا۔ یہ وہ سوچ تھی جو بعد میں ہر شیطانی تنظیم کی بنیاد بنی۔ ناظرین، صدیاں گزری، تہذیبیں بدلی، مگر سازش کا بیج جوں کا توں رہا۔ یونانی فلسفی سقراط، افلاطون اور ارسطو علم لائے، مگر ان کے شاگردوں میں ایسے بھی تھے جنہوں نے اس علم کو باطل فلسفہ بنا کر پیش کیا، جہاں انسان اپنے خالق کو بھول کر خود کو خدا سمجھنے لگا۔ روم میں سیاست اور مذہب کا کٹ جوڑ ہوا اور وہاں کے اشرافیہ نے خفیہ سوسائٹیز بنا کر اقتدار پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ یہی وہ ماحول تھا جس سے فری میسن اور ایلومیناٹی کے ڈھانچے مارزے وجود میں آئے۔ ناظرین، یہودی روایات میں ایک خفیہ علم ہے جس کو قبالہ کہتے ہیں، جو اعداد، علامات اور شیطانی قوتوں پر مبنی ہے۔ یہ علم صرف خاص گروہوں کو سکھایا جاتا تھا اور اس کا مقصد دنیاوی اقتدار کو حاصل کرنا تھا۔ صلیبی جنگوں کے دوران یہ خفیہ علوم یورپ پہنچے۔ یروشلم کی گلیوں سے لے کر پیرس کے محلات تک یہ علم پھیلتا گیا اور ایسے گروہ بنے جن کے نشان، ہینڈ شیک اور خفیہ کوڈز آج بھی موجود ہیں۔ ناظرین، 1776 میں یورپ کے ایک شہر میں خفیہ اجلاس ہوا۔ یہاں ایلومیناٹی نامی ایک گروہ پیدا ہوا جس کا مطلب تھا روشن خیال لوگ، مگر یہ روشنی نہیں، تاریکی کی روشنی تھی اور ان کا مقصد مذہب کو مٹانا، حکومتوں کو قابو میں لینا، ایک عالمی نظام قائم کرنا، ایسا نظام جو دجال کے لیے زمین ہموار کر دے۔ ناظرین، 18ویں اور 19ویں صدی میں دنیا کے اندر انقلابوں کی لہر چل پڑی۔ فرانس کا انقلاب، جہاں بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ امریکہ کی آزادی، جہاں ایک نئی ریاست مارز وجود میں آئی۔ کیا یہ سب عوام کی بیداری تھی یا پس پردہ کسی خفیہ ہاتھ نے بساط بچھائی ہوئی تھی؟ ناظرین، تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کئی بڑے رہنما کے قتل، کئی بادشاہتوں کے خاتمے اور کئی جنگوں کے پیچھے وہی خفیہ گروہ تھے جو ایلومیناٹی کے وفادار تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا، دنیا میں طاقت کا توازن توڑ کر ایک نئی عالمی نظام قائم کرنا۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آخر میں ایک اور خطرناک ہتھیار وجود میں آیا، یعنی بینکاری کا
आलमी निजाम। पहले करंसी सोने और चांदी पर मबनी थी, लेकिन फिर कर्ज, सूद और कागजी नोटों ने दुनिया को जकड़ लिया। ये वो मुआशी जाल था जो हर मुल्क को कर्ज के बोझ तले दबा देता। बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे, वर्ल्ड बैंक, IMF सब इसी मंसूबे का हिस्सा हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, कभी आपने सोचा है जो आप खबरें सुनते हैं वो किसने चुनी हैं? जो मूवीज चलाई जाती हैं उसके पीछे क्या नजरियात हैं? इल्यूमिनाटी ने मीडिया को एक ऐसा हथियार बनाया जो अवाम की सोच, अकायद और तर्ज जिंदगी बदल सके। हॉलीवुड की फिल्मों में बार बार आंख का निशान, हरमीस के स्तून और शैतानी हाथ के इशारे क्यों नजर आते हैं? और मिस्र के पिरामिड्स को अलल अलानिया दिखाया जाना और उनकी अहमियत को बताया जाना, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि जहनों को दज्जाली निजाम के लिए तैयार करने का एक मुनज़्ज़म मंसूबा है। नाजरीन, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में मगरबी ताकतों ने बड़े बड़े तालीमी अदारे कायम किए। ये अदारे साइंसी तालीम देते थे मगर साथ साथ मजहब को एक पुरानी दास्तान करार देते। यही वो जगह थी जहां नई नस्ल को यह बावर करवाया गया कि खुदा का तस्वुर इंसानी जहन की इजाद है, अखलाकियात निस्बती हैं और इंसान खुद अपनी तकदीर का मालिक है। नाजरीन, खुफिया तंजीमों ने आलमी सियासत को जकड़ लिया। फ्री मैसन्स के लाजिज, इल्यूमिनाटी के खुफिया अजलास और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग मिलकर बैठकर फैसला करते हैं कि किस मुल्क में जंग होगी, किसकी माइशत तबाह होगी और कहां नई हुकूमत कायम की जाएगी। ये लोग जमहूरियत, इंसानी हुकूक और तरक्की के नाम पर दरअसल एक आलमी आमराना निजाम कायम करना चाहते हैं। नाजरीन, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी एक नेमत भी है और एक खतरा भी। मसनूई जहानत, AI, बायोमेट्रिक शनाख्त, डिजिटल करेंसी और निगरानी का निजाम, ये सब वो आलात हैं जो इंसान की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। नाजरीन, हदीस पाक में आता है कि दज्जाल के पास ऐसे वसाइल होंगे जो एक लम्हे में खबर पहुंचा सकेंगे और वो दुनिया के हर कोने में असर डाल सकेगा। आज का इंटरनेट, सैटेलाइट सिस्टम और डिजिटल निगरानी इसी पेशगोई का अमली शक्ल है। नाजरीन, ये जंगे, इनकलाब, माइशत पर कब्जा, मीडिया पर कंट्रोल और टेक्नोलॉजी का जाल, ये सब एक ही मकसद के लिए है, जमीन को दज्जाल के लिए तैयार करना। नाजरीन, हदीस पाक में आता है कि दज्जाल के पास पानी भी होगा और आग भी, मगर उसकी आग दरअसल ठंडा पानी होगी और उसका पानी दरअसल आग होगी। ये इशारा सिर्फ फरेब की ताकत की तरफ नहीं है बल्कि सच और झूठ को उलट देने के निजाम की तरफ भी है। नाजरीन, कुरान और हदीस दोनों में दज्जाल की फितना अंगेजी के बारे में वाज़ेह तंबीहात मौजूद हैं। उलमा लिखते हैं कि दज्जाल के फितने में मजहब को कमजोर करना, अखलाकियात को मिटाना और लोगों को दुनिया परस्त बना देना शामिल है। आज के दौर में यही कुछ हम देख रहे हैं, जहां पर लिबरलिज्म के नाम पर मजहब से दूरी, सरमाया दराना निजाम के तहत लालच की तरवीज, मीडिया के जरिए फहाशी और बेहयाई को आम करना। नाजरीन, इस मकसद के लिए दज्जाली तंजीमें सबसे बड़ी जो दुनिया में काम कर रही हैं, जिनको इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन के नाम से जाना जाता है, इनका सबसे बड़ा ख्वाब यह है कि यरूशलेम में हैकले सुलेमानी की तामीर करना। ये वो मुकाम है जहां दज्जाल खुद को मसीह जाहिर करेगा और दुनिया की सियासत इसी हदफ के गिर्द घूम रही है। मशरक़ वुस्ता की जंगें, फलस्तीन पर कब्जा और खित्ते में मुसलसल बदअमनी सब इसी खेल का हिस्सा हैं। नाजरीन, जब दज्जाली निजाम अपने उरूज पर पहुंच जाएगा और लोग उम्मीदें छोड़ बैठेंगे, तब फिर अल्लाह ताला अपने दो अजीम बंदों को भेजेगा। एक इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करेंगे और जुल्म का मुकाबला करेंगे, और दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो दज्जाल को कत्ल करेंगे और जमीन पर अदल कायम करेंगे। नाजरीन, हदीस पाक के मुताबिक दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लुद के मुकाम पर कत्ल करेंगे। उसके बाद एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें जमीन अदलो इंसाफ से भर जाएगी। इस वक्त ताकत का जो भी पैमाना है, लेकिन हमें ये ईमान रखना होगा कि दज्जाल का निजाम जितना भी ताकतवर हो, अल्लाह का वादा गालिब है। अगरचे आज जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं वो एक बड़े जाल में लिपटी हुई है। ये जाल नजर नहीं आता मगर हर स्क्रीन, हर नोट और हर खबर की सूरत में हमें घेरे हुए है। मीडिया का जादू जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करता है,
डिजिटल करेंसी और मुआशी गुलामी, जहां आपका पैसा एक बटन के जरिए मुजमद हो सकता है। मसनूई जहानत और निगरानी का निज़ाम, जहां हर हरकत, हर लफ्ज, हर खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड हो रही है। सकाफती यलगार की बात करें, जहां फहाशी, लादीनियत और नफ्स परस्ती को तरक्की का नाम दिया जा रहा है। ये सब वो हथियार हैं जो दज्जाली ताकतें इंसान को अपनी मर्जी के सांचे में ढालने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अगर हम इससे बचना चाहें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें हमेशा अपने दिलो दिमाग में नक्श करना होगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। ये हिफाजत का पहला किला है। इसके साथ साथ नमाज को मजबूती से थामना, रिज़्क़ हलाल कमाना, इल्म दीन सीखना और सिखाना, सच्चाई और अदल पर कायम रहना, मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना, ये वो ढाल है जो दज्जाली हमले को रोक सकती है। नाजरीन, बातिल से लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं, ये कलम से भी है, जुबान से भी है और किरदार से भी है। हर वो शख्स जो सच बोलता है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, कमजोरों का सहारा बनता है, वो दज्जाली निजाम के खिलाफ एक खामोश सिपाही है। नाजरीन, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये इम्तिहान है। लिहाजा हमें जाग जाना चाहिए, सच को पहचाने, हक के काफिले के साथ शामिल हो, क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है और फैसला हमारी सोच से भी करीब है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।